Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us for this session. My name is Rashi, and I'm part of the School of Human Development at IHS. And I just wanted some rules for the panel as we are going ahead. The panelists will present in Hindi, and we will stop after every slide, and there will be a translation in English that I will do. So just bear that in mind. And that's about it. We'll begin. So a little bit on the panel. This is a very special roundtable. The presenters are all fellows of the Urban Change Makers Fellowship that IHS has been hosting since 2023, which is in the long sort of almost 10, 11 years of work that the School of Human Development has done since 2015, which has been to collaborate actively with activists who are working on a range of urban issues. And we've been co-producing knowledge with them, and we've been setting agendas of what research should look like in the urban, and we've been building capacities together. This current batch that we have here is a 9-month training program that has been run since 2023. We've had 2 cohorts, one in Delhi in 2023 and the other in Madhya Pradesh in 2024. This is a unique attempt at looking at university, reimagining the public role of the university, and really looking at what classrooms and non-traditional classrooms can look like. So we run it for about 9 months, where we have 6 sessions. Over every 1.5 months, we go in, and our residents, our fellows come in, and we do 2-day residential trainings with them on a range of issues. So we look at theory, we look at skill labs, and we look at building up their capacities as leaders. A very important part of who our fellows are, they're all residents of informal settlements or resettlement colonies in these cities. They are young people who've gone through evictions, have either continue to do the work that they're doing on housing rights and its allied rights in their cities, and they come in groups of 18 to 20, and we run this cohort for about 9 months, and that's the model of the Urban Change Makers Fellowship. And we are very happy to present how the methods of, what does it mean to truly co-produce knowledge with communities, and they'll be presenting their work now. So very happy to introduce Meena. Meena is from Sagar, Madhya Pradesh, and is currently anchoring the Madhya Pradesh Navnirman Manch, which is a people's campaign in the city of Sagar. Meena, आप बोले. जिंदाबाद, जय भीम साथियों। मेरा नाम मीना है और मैं सागर मध्य प्रदेश से आई हूँ और मैं मध्य प्रदेश नवनिर्माण मंच का एक हिस्सा हूँ। तो मैं IIHS और MPNNM की तरफ से सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है आने का और अपनी बात रखने का। हमारा मध्य प्रदेश नवनिर्माण मंच क्या काम करता है उसके बारे में बताएंगे और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग के बाद उसमें क्या बदलाव आए हैं और किन कामों को मंजूरी मिली है, उसको लेकर आप सबसे बात करेंगे। बेहतर आवास के लिए काम करता है। जैसे सभी अपना-अपना घर बहुत अच्छा चाहते हैं, ऐसे हम भी चाहते हैं कि बस्तियों में लोगों के पास पक्के मकान हों और उनको भी वो सारी सुविधाएँ मिलें, जो सुविधाएँ और बाकी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए होती हैं या अच्छे जो कह सकते हैं कि बेहतर कॉलोनी बनाई जाती हैं और जो सुविधाएँ उनको होती हैं, वही हमारी बस्तियों में हों। और कोई दूसरी या तीसरी लाइन नहीं बल्कि सभी के पास लीडरशिप हो। जो बस्ती में लोग रह रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमें किन विभाग में जाके किन चीज़ों को लेके, किन मुद्दों को लेके हमें मदद चाहिए है या हम किस तरीके से अपने काम के लिए जा सकते हैं। तो सभी को अपना एक होना चाहिए जानकारी। तो उसके लिए काम कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। मतलब किसी एक का ठेका नहीं है कि हमें अगर ये जानकारी है तो हम उसके पास जाएँगे, वो वही हमें बताएगा। हाँ, आपने बोला था translate उतना करो. कर दो फिर मैं So देखती हूँ। Meena welcomes everyone, and that she said that she's from MPNN.
and IHS, and that she is here presenting the work that she does in Sagar. And she said that the themes that she works on is housing for all. She said that the focus is on informal settlements and how it is important that everybody should have a right to housing, and that housing should be affordable and viable. And she also said that, she has been working on building capacities, her own and the communities, on various technical skills, on where you can go. She also said an important thing where she says that there should not be a second or third line of leadership that comes in from in these communities, that they should be the first and that they should have all the knowledge and all the skills required to go and ask for things that they want to do or they seek to do, such as going to government officials, learning various technical skills. So firmly believing that the first line of leadership of this work must rest within the residents of communities. कम्युनिटी के सदस्यों को टेक्निकल स्किल स्पोक पर्सन के तौर पर ट्रांसफॉर्मर मतलब सभी के पास वो संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए जो राज्य और समुदाय के बीच में सीधा वकालत सिस्टम कोई वचोलिया बीच में मतलब ये है कि जो हम लोग बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट ही अपनी बात अगर हमें कलेक्टर से बात करनी है विधायक से बात करनी है कोई आवेदन करना है या कुछ भी है तो कोई बीच में नहीं होना चाहिए सीधा हम उनको दें और वो हमें फिर काम करके दें ये है She reiterated that it's important that people understand policies and have access to government officials themselves, and that people should be able to go and speak directly and demand what are the kind of improvements that they want in their communities and the kind of work they want done there. यह काम कहाँ किया तो हम लोगों ने शहरी स्लम क्षेत्र में जो बस्तियां होती हैं उनके बीच में काम करा है जो पुनर्वास कॉलोनियां होती हैं जिनको हटा दिया जाता है कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है मतलब उन कॉलोनियों में या उस जगह पे काम किया हम लोग 20 बस्तियों में तो काम कर ही रहे हैं लेकिन उससे जो और मिलती जा रही हैं तो सबके बीच में काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मल्टियाँ बनाई हुई हैं उन लोगों के बीच में संगठन बने हैं हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और यह काम कब किया तो पिछले 18 महीनों में लगातार कैंपेन के दौरान जागरूकता अभियान के दौरान सफाई अभियान के दौरान और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र जैसे महिला दिवस हो गया बाल दिवस हो गया संत रविदास जयंती हो गई रमाई जयंती हो गई तो ये सारे हम लोग जो दिवस हैं वो अपनी बस्तियों में मनाते हैं समुदाय की मांग और आवश्यकता के लिए किया है और बरसात के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा जल भराव हो गया था समस्या हुई थी तो उन सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं सोशल मीडिया के दौरान जो हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी उसको लेकर So Meena has been doing this work with MPNN in the last 18 months. In the last 18 months in Sagar, she's worked in over 20 communities. There are other volunteers that work with her and she manages them. She's worked on PMAY, which is the Pradhan Mantri Awas Yojana, and where there are multi-story buildings that have been made. So sort of making groups over there to raise questions and to really, make people in the communities aware of these schemes, what are their challenges, and what is and also the way that they work is that they take up. She's worked on different days that come up. So if it's Women's Day, if it is Ambedkar Jayanti, if it is Sant Ravidas Jayanti, so these are important days when they will go in. So as a method, they have used these specific days to go into communities and raise awareness. They've also set up cleanliness campaigns, etc., to kind of raise awareness. Then also in specific months where there is where there's waterlogging, say in the monsoons, she says, where there is a lot of waterlogging and people are really sort of these challenges come up with these communities, is when they go and they can get the communities directly mobilized on these issues. यह काम किसके साथ किया तो जो बस्तियों में रह रहे हैं लोग उनके साथ किया है महिला और युवाओं के साथ है और जो हमने पहले बताया कि संगठन है हमारे सीवीओज बनाए हैं और वॉलंटियर हैं जो काम कर रहे हैं हमारे साथ और एक जैसी सोच वाले जैसे वरिष्ठ पत्रकार हो गए प्रोफेसर हो गए वैज्ञानिक हो गए सरकारी अधिकारी जो रिटायर्ड हो गए हैं तो इन सबके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं IIHS IIED ये मैं मतलब वीडियो बनाई है मैंने एक उसको लेकर और
डीपीएस और जीआईजेड और आईटीआई कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ। So there is a specific focus to work with women, with the youth in the communities, and like you can see on the slides, the Meena has been working to set up community-based organizations and volunteer groups to take this work forward. There's also mobilized a lot of support from like-minded individuals such as professors who work on issues like this, and journalists that they reach out to say that you should raise these issues at the city level. And further sort of organizations such as IHS and IIED and GIZ have also sort of worked along with them. Particularly for IIED, Meena has made a lot of videos. A lot of social media has been used to do advocacy for these issues. यह काम कैसे किया तो समुदाय के मुद्दों को पहचाना, जैसे कि सबसे मेन तो है मध्य प्रदेश नवनिर्माण मंच का हाउसिंग राइट्स, आवास के मुद्दे पे काम करता है, लेकिन आवास के साथ साथ बेहतर जो होती हैं ज़रूरतें उनको लेके उन उन मुद्दों को पहचाना और उसको लेके फिर समुदाय की सहमति से, मतलब सबको बता के कि हम वीडियो बना रहे हैं, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो हमें बता देना, फोटोग्राफ्स उनके इंटरव्यू लिए, इन सारी चीज़ों को लेके जो प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल मीडिया के उन पर डालना शुरू किया और उनकी छोटी-छोटी स्टोरीज़ और जो अधिकारी हैं, राजनेता हैं, सांसद, विधायक और भी तो उन सबको टैग करा। तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोगों ने यूट्यूब, इंस्टा, फ़ेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ये ग्रुप बनाए हैं। बस्तियों में भी हमारे ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप ग्रुप, जिनको लेकर पहले ऐसा होता था कि सबके घर-घर जाके उनसे बात करनी पड़ती थी। लेकिन अब व्हाट्सएप ग्रुप में सब अपनी-अपनी समस्याएँ बता देते हैं कि दी अपन को ये करना है, ऐसा है। तो फिर उनको लेके हम लोग एक साथ बैठते हैं और बता देते हैं टाइम कि इतने टाइम अपन को ये काम करना है, तो फिर वो मतलब सब लोग मिल जाते हैं। और जैसे अभी हमने भू अधिकार योजना के तहत पट्टे के आवेदन कराए हैं, तो भगत सिंह वार्ड में 100 पट्टे के आवेदन किए हैं, जो नगरीय भू अधिकार योजना चलती। लगभग लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ का कि ये योजना भी है जिससे जिनके पास घर नहीं है, किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है, उनके लिए जो बस्तियों में रह रहे हैं बहुत सालों से, उनके पट्टे के आवेदन हम लोगों ने किए हैं। और एक अब वीडियो बनाने का सोचा है कि उसको लेके और फिर इंस्टा पे या फ़ेसबुक वो यूट्यूब पर डालेंगे। So, Meena says that where Madhya Pradesh Navnirman Manch focuses strongly on the issues of housing, there has been a movement to sort of understand housing and its allied rights. So she spent a lot of time in these communities to understand what those other issues are, and then has through trainings that she received on social media and how to make films, etc., she went in and very ethically to sort of say to the communities, and seek their permission that she's going to make videos, she's going to take photographs. She wants them to speak up on these issues, so that they can a larger movement can and conversations can be built around this. So she's made those videos and they've been put on platforms such as YouTube and Instagram and Twitter and Facebook, and also a lot of WhatsApp groups have been created now. So use of technology there, where she says earlier when she used to work in communities, she had to go door to door to inform people and say, this is what needs to be done. This is when the meeting is. She now directly sends these WhatsApp messages in each community and, gets them to mobilize. One example she's given is that she's been working with landless, people who are living in bastis, have no, sort of tenure, security, or no lease on their land, no papers, has been working with with about 100 of those community members, and sort of doing an advocacy campaign in sort of getting them that tenure security. यह तरीका क्यों अपनाएँ? समुदाय की आवाज़ मुख्य धारा तक नहीं पहुँचती। जैसे कि पहले हम लोग काम कर रहे थे, जब पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कोई भी आवेदन दे रहे हैं या किसी भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो वो काम नहीं होता था। क्योंकि दे हम तो दे देते थे, लेकिन आगे उसका क्या है मुख्य धारा, मतलब पेपर में वो चीज़ नहीं आती थी। किसी भी राजनेता का कुछ होगा तो पेपर में देते हैं, लेकिन अगर हमारी बस्ती से जुड़ी समस्या है, तो उसको वो अपन दे के भी आ जाएँगे उनको, तो वो छापते नहीं हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हम लोगों ने आईआईएचएस से ट्रेनिंग ली है, और वो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। उसके बाद हम लोगों ने किस तरीके से वीडियो बनाना है, उसको कैसे अपलोड करना है, इन सारी चीज़ों को मैंने सीखा और फिर मैंने सबको सिखाया।
हम लोग कुछ यूथ और है 50 समथिंग जो इस पर काम कर रहे हैं। तो So वीडियो का प्रभाव अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोगों के पास अब हर घर में मोबाइल होता है। पहले जैसा नहीं है और सोशल मीडिया इतना व्यापक मतलब कोई भी पोस्ट अगर हम डालते हैं तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ और सारी चीज़ें और नीति निर्माता युवाओं की जो एक सीधी पहुँच है मतलब हम जो वीडियो बनाते हैं उसको सब लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं। पेपर अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि लोगों के घरों में आते भी नहीं हैं और जिनके पास आता है उनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए वीडियो का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। So, Meena said that there is a big gap in the mainstream media reporting issues of communities. And that is why she's particularly taken up this one skill that she, has learned at IHS and other places to kind of, look at that as a form of, community mobilizing and also demanding rights. So she said that, when these videos, because she's saying that everybody will not always read a newspaper or even when they go to like say media houses and say you should take up this issue. So she also said when there's something that has to be written about, even a little bit about political leaders, it'll be covered in a big way, but when it comes to the issues of so many people who live in informal settlements, that just gets missed out. So social media becomes a more equalized space, a platform where you can really do these things and talk about these things. And she also said that people don't really read anymore, and there is access now through phones or videos. So there is a space where this information gets out. And not only that, once she learned this skill, she has taught it to over 50 other young people and other people in communities who are also now taking this up and doing it on their own. प्रभाव और सीख समुदाय की आवाज़ को पहचान मिली है। मतलब अब हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों की बस्तियाँ जो हैं या लोग हैं, तो उनको अब सब जानते हैं। क्योंकि किसी न किसी बस्ती से कोई न कोई 10 महिलाएँ ऐसी हैं कि ये जानते हैं कि हाँ, इस बस्ती की ये महिला है। क्योंकि इसका मैंने वीडियो देखा था, वहाँ डला है, ऐसा है। और जागरूकता और संवाद बढ़ा है मतलब एक बस्ती से फिर लोगों तक वो चीज़ पहुँची है, तो लोग बहुत स्पीड से बढ़े हैं और जागरूक हुए हैं। जो समुदाय का है वो हम लोगों पर विश्वास बढ़ा है और खुद का भी बहुत ज़्यादा कि हमने कुछ सीखा है, उसको लेके अब हमें वहाँ देखने मिलता है कि हाँ, उस वीडियो में हम भी हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। और सोशल मीडिया के दबाव से हम लोगों ने 3.29 करोड़ रुपए के जो डेवलपमेंट के काम हैं, उनको मंजूर करवा लिया है, जो आगे हम स्लाइड में दिखाएँगे। और अब जो विधायक, सांसद या कोई भी है, तो उनके बीच में वो जो तीसरा इंसान रहता तो वो नहीं है अब। तुम्हें बात करनी है डायरेक्ट आके हमसे बात करो, कोई बीच में बात नहीं करेगा, ऐसा हो गया है। और जो पहले ऐसा था कि पेपर वगैरह में चीज़ें नहीं देते थे, लेकिन अब जब वीडियो डलती है ना तो उनको पेपर में झक मार के देना पड़ता है, ठीक है? और उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, दबाव पड़ता है चीज़ों का कि उनको फिर वो काम करना ही पड़ता है। सड़क को लेके एक हम लोगों का बड़ा करीला की सड़क है जो, उसको पिछले 1 साल से परेशान हो रहे थे। लेकिन उसको लेके फिर वीडियो बनाया और वीडियो के बाद में सबसे पहले मैंने पार्षद को घेरा कि ये कुछ नहीं करती है, किसी काम की नहीं है, पिछले 3 साल से ये बैठी है, काम-वाम कुछ आता नहीं है। तो फिर उसका जब वीडियो डला तो फिर उसका फ़ोन आया, "ये क्या है? और कौन हो तुम?" ऐसे करके उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा काम क्यों नहीं करती है? काम कर तो मैं बोलूँगी नहीं। अब तू काम नहीं करती है तो बोलना पड़ेगा ना भाई। ऐस तो उस बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया का प्रभाव एक एक तरीके से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आगे। So she said that because of these videos, a lot of people in the communities also now feel that they can recognize themselves. So if somebody comes to the community, they said, "Oh, we've seen the video of these 10 women in this community. So if we need to get something done, these are the 10 women that we need to go and speak to." And so there is a dialogue that has been created, and what is there is that there was a middleman between the communities and the elected representatives and the government structures. Now that has completely been removed because she gave an example where she said that, directly she made a video because there was a road that was not being made for 1 year and there had been petitions and all of that. So she said she just made a video directly on what the ward councillor is not doing. So it was a female ward councillor. She said she's not doing anything and, she made a big video and it went viral. And then the ward councillor directly called her and said, "Who are you?"
why are you talking like this? And she said, well, if you're not going to do anything, then I am going to talk about it. If you did your work, then I didn't need to raise this issue. So you better do it. So, this kind of pressure is now being put on what councillors in, in the city of Sagar. And she said that now they have to do it because it's out there and because so many people are talking about it. So then, because of this, some 3.29 crores of public works have been approved in the last 18 months in Sagar. So, yeah. ये आगे जो काम हम लोगों ने स्वीकृत करवाए हैं, मंजूर किए हैं, वो स्लाइड में दिख रहे होंगे। कम्युनिटी हॉल बावनखेड़ी एक बस्ती है, उसमें 36 लाख का काम मतलब सामुदायिक भवन उनने स्वीकृत करा है। सीमेंट रोड बड़ा करीला जो मैंने अभी बताया रानी पार्षद के बारे में। सीवेज लाइन है बावनखेड़ी की 15 लाख की। भगत सिंह बाट में 24 लाख की सड़क और सीवेज दोनों। पानी की पाइपलाइन कनेरदेव बस्ती है। ये बस्तियों के ही काम है जो हम लोगों ने मंजूर कराए हैं। इंदौर में साथी हैं गौरव, उनने खजराना में 35 लाख का सीवेज कनेक्शन और रोड। डेनिस बुद्धनगर इंदौरी में और गार्डन है भोपाल में, इंदौर में। सीमेंट रोड है महादेव नगर इंदौर। अच्छा इसमें दिख रहा है। डीनेज लाइन सूर्यदेव नगर इंदौर में। तो ऐसे करके कुल 3 करोड़ 29 लाख के काम हम लोगों ने कराए हैं और पट्टा स्वीकृत। पट्टा के लिए अभी ये हम लोगों ने 2 महीने में करा है। हम लोग तहसीलदार के पास गए, पहले हम लोगों ने हर जगह कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में विधायक, सांसद सबके यहाँ गए। उसके बाद हम तहसीलदार को पकड़ा कि ये है मतलब इसी का मेन रोल रहता है। तो उसको पकड़ा तो हम लोग उसके यहाँ गए, हमारे एक साथी हैं विपिन करके। तो हम लोगों ने उनसे पूछा, मैंने कहा सर पट्टे के आवेदन तो हमने किए हैं, 8 महीने हो गया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कौन से पट्टे के आवेदन अभी कहाँ हो रहे हैं? योजना बंद हो गई है, 2022 में से बंद है योजना। तो फिर मैंने अपना लैपटॉप निकाला और मैंने उनको सर्च किया RCMS पोर्टल पर। तो मैंने दिखाया, मैंने कहा सर ये देखिए योजना चालू है। तो वो कहते नहीं, अभी कोई पट्टे-अट्टे नहीं मिल रहे हैं, जाओ तुम यहाँ से। मैंने विपिन भैया को कहा, मैंने कहा मोबाइल ऑफ कर दो, वीडियो बन गई है। तो वो कहता है नहीं तुम बैठो, ये प्लीज़ बंद कर दो इसको, चालू नहीं रखो। तो मैंने कहा नहीं योजना तो बंद हो गई है, एक बार और बोलिए योजना बंद हो गई है। तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप आवेदन जो किए हैं वो लाके दे दीजिए हमें, हम करते हैं आगे की प्रोसेस। ऐसे करके फिर उसने फिर हमने आवेदन कराया और आवेदन 150 आवेदन में कुछ 36 स्वीकृत हो गए हैं। तो अब वो बटेंगे जिस दिन हम डालेंगे उसका वीडियो वगैरह या फोटोग्राफ्स। So this is the list of the 3.29 crore, projects that have been passed in Sagar, Indore, and Bhopal. She also spoke about, how they have been pushing for the last 8 months to get pattas, to get papers, formal papers for people's houses in these bastis. She went to the Tehsildar and said that, we've been telling you for 8 months, we've written letters, why hasn't this been done? And he said, but that scheme's not working since 2022. There's no pattas to be given, there are no papers to be given, just leave from here, And so she said, I opened my laptop and I went on the government portal and I said, look, the scheme is still there, like what are you talking about? He said, no, all of that is nothing, you leave. So she's turned to her colleague Vipin and said, switch off your phone now, the video has been made. So he said, no, he got very scared. He said, no, please don't delete the video, don't do this. So she said, no, say it again one more time on the video that the scheme is not working, so that then we can tell people that the scheme is not working anymore. So he said, no, please don't release this video, we will get the work started. ये हम लोगों ने जो ट्रेनिंग ली थी उसके वीडियो है, किस तरीके से फोटो लेनी है, कैसे वीडियो बनानी है। और पेपर का एक थोड़ा सा रहता है कि तो उसमें बताया गया था कि हमें किस तरीके से काम करना कि अपन पेपर में भी थोड़ा सा मिल जाएगा आगे। और आगे फिर न्यूज़ अपने आप आई है क्योंकि वीडियो डाला है, तो फिर उनको डालनी पड़ी जग मार के। हाँ, ये मेरे वीडियोज़ बनाने की फ़ोटो हैं, जब मैंने वीडियो बनाई है और डाली हैं। ये सब साथी हैं हमारे जो CBOs वगैरह की महिलाएँ भी हैं इसमें, जो इंटरव्यू दे रही हैं। So as you can see, there are also tickers of breaking news on the video. Yeah, so that is how the videos have been made. These are on YouTube. You can go and check them out. ये न्यूज़पेपर में जो हम लोगों ने काम करवाए हैं, उसकी कटिंग है। उन्होंने फिर डाला न्यूज़ में। ये लिंक हाँ, बता दीजिए।
these are all the links to the Instagram and other videos, and we are happy to share these with anyone who's interested to follow them and their page. धन्यवाद। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा है जो बताना चाहते हैं। हम लोगों ने ये मतलब ऐसा है कि जो काम कर रहे हैं ना, उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना है। हमें जो चाहिए है वो हमने फिर उसके बाद डाला है। हमारे यहाँ पे कोई भी तरीके की तोड़-फोड़ नहीं होनी चाहिए और हमें भी शहर में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे सब रहते हैं वैसे हमें भी चाहिए है और पूरे सुविधाओं के साथ और प्लाट की मौजूदा रजिस्ट्री हो, राज्य भूमि और आवास की नीति जो है उस पर अच्छे से काम हो। एजुकेशन जागरूकता कार्यक्रम पर्सनल मतलब जो और भी लोगों से हमें सीखने की ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हों जो हमें और बेहतर तरीके से सिखा सकें। क्योंकि मैं इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे पहली बार बात कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा है, लेकिन ठीक है और मेरे साथ 50 समथिंग यूथ हैं, जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, डालते हैं और भी जो बस्ती की समस्याएँ, तो ग्रुप के साथ चलते हैं और काम करते हैं और महिलाओं को इतना जागरूक कर दिया है कि वो खुद से ही अब पूछती बस है कि दीदी यहाँ जाना है, तो मैं बोल देती हूँ उनको ठीक है। मेरी ज़रूरत है क्या? नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएँगे। ठीक है। ज़िंदाबाद, जय भीम। थैंक यू। So in the end, Meena is saying that this is the work that's happened in the last few years, and particularly in the last 18 months. This work, but there is much to do, and the demands are of an equal right to the city, and that people should have a right to housing, which is equal, and further. She also said that she's now in a position where so many people are working on this, like some 50 people who are together who are making these videos, putting them out, and also that now women just say to her in the community that we want to go to this department, get this done. So she asked them, do you need me to come? And they said, no, we don't need you, we are just telling you that we are going and we can handle this on our own. And she said Jai Bhim and Zindabad. So, my name is Aman, and first of all, I want to thank IHS and team for giving us this opportunity. Today, I'm gonna show you about documentation and archiving of my community. So, I'm from Team Sathi Khorigaon, and I'm not good in English. I tried some, so sorry for that. I'm presenting my presentation is in Hindi. So this is sorry, ये हमारी टीम है जिसका पूरा नाम है टीम साथी खोरीगांव। हम लोग कुछ साथ के कुछ स्टूडेंट्स हैं और एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स जिन्होंने मिलके एक टीम बिल्ड की अ, जिसके साथ अभी हम काम कर रहे हैं। सो ये है खोरीगांव। खोरेगांव दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे स्थित एक बस्ती थी जो कि लगभग 120 एकड़ की रेंज में फैली हुई थी और लगभग अराउंड 50-60 इयर्स पहले वहाँ पे पहले माइनिंग होती थी, जिसके बाद धीरे-धीरे लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। जो लोग वहाँ माइनिंग करते थे, वो लोग वहाँ पे रहते थे, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें आगे बढ़ती गईं और वहाँ पे लोगों की जनसंख्या और वहाँ पे जो घर थे, वो बढ़ते चले गए। जिसके बाद अगर हम अंदाज़ा लगाएँ तो सन 2021 तक वहाँ पे अराउंड 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे और 10,000 से ज़्यादा घर थे। हाँ। So Aman introduced the team that he's from. It's called Team Sathi Khorigaon. Khorigaon was a community on the border of Delhi and Haryana, and it was a large settlement of 100,000 people with 10,000 households. The history of Khorigaon is quite long. 50, 60 years ago, it used to be a place where mining happened. And when mining stopped, people started building their homes, and it was a very densely populated area where, 100,000 people lived. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि खोरी गाँव की वैल्यू बताते हैं। जैसे कि खोरी गाँव
120 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी जगह हो जाती है और दिल्ली और हरियाणा को कनेक्ट करने का काम करता था कोरेगाँव। और ये एक टूरिस्ट प्लेस है कॉल्ड सूरज कुंड। वहाँ पे फरवरी में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फेयर भी लगता है, जो कि एक हैंडक्राफ्टेड मेला कहते हैं, तो वो लगता है। और एक अ, बहुत कह सकते हैं कि टूरिज़्म विज़िटेड प्लेस है वो। ये खोरेगाँव का मैप है, ये सन 2017 का मैप है। इसमें सो 7 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, जिसमें वो कहते हैं कि पीएलपीए के लैंड पे जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं, उन सभी का विध्वंस कर दिया जाए, उनको तोड़ दिया जाए। पीएलपीए यानी पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के अंडर में उस समय लगभग 130 कंस्ट्रक्शंस और बैंक्वेट हॉल्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड फार्म हाउसेस आते थे। बट गवर्नमेंट का जो एक्शन था वो सिर्फ खोरेगाँव के ऊपर ही लिया गया, और वो भी बहुत ब्रूटली तरीके से, क्योंकि उन्होंने तोड़ते समय ना ही कोई सर्वे किया, ना ही टेम्परेरी शेल्टर्स का कोई इंतज़ाम किया वहाँ के लोगों के लिए। आप ट्रांसलेट करेंगे? हाँ। Since this is on the slides, I won't be translating it. Yeah? ये मैप है 2021 का, जब खोरेगाँव टूट गया। इसमें मार्किंग की गई है, जो रेड वाली मार्किंग के बाहर का एरिया है, वो आप देख सकते हैं, वो दिल्ली का एरिया है। एंड मैंने इसमें पॉइंटर्स लगाए हैं 3, व्हिच इज़ राइट साइड। अगर ये 3 डॉट्स हम देखें, तो इसमें से ये जो नीचे के 2 डॉट्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं। एक है पिनेकल टावर, एंड सेकंड इज़ विवांता बाय ताज, जो कि बहुत बड़े होटल्स हैं। और जो ऊपर की साइड में पॉइंटर है, वो है राधा स्वामी आश्रम। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही खोरीगाँव के बॉर्डर से लगे पड़े हैं, बट ये लीगल हैं, क्योंकि दे आर एलीट्स, जो कहते हैं। So this is the ek bari piche hai? So this is the boundary that he is demarcated of Kurigaon as it was in 2021 before it was demolished. He said you can see Delhi on the other side. There are also 3 pointers that he's put in the map that you can see. The first one is called Pinnacle Tower. The second one on the left is Taj Vivanta, which is a 5-star hotel. And the third one is a ashram or a spiritual retreat of the Radha Swami Satsang. And he says, but when evictions happened, and all of these were in the illegal zone according to the PLPA, but when evictions happened, only Khorigaon was demolished, but the others weren't, because those were elite structures. ये डेमोलिशन के बाद की कुछ फोटोज हैं। जो डेमोलिशन किया गया था, उस समय कोरोना का पेंडेमिक चल रही थी। जब गवर्नमेंट कह रही थी कि आपको घर से बाहर नहीं निकालना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, और उन्होंने 10,000 से ज़्यादा घरों को तोड़ के उसकी 1 लाख की जनसंख्या को घर से बेघर कर दिया। बिना किसी रिहैबिलिटेशन के, बिना किसी शेल्टर्स प्रोवाइड किए, बस बोला कि अब आप जहाँ जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। So, the eviction happened during the pandemic. So this was immediately after a very deadly second wave of COVID in Delhi, which saw many, many deaths. And Aman is saying that this was the time when the government was giving advisories to everyone to stay at home and not move outside. Yet they chose that moment to demolish over 10,000 homes and make homeless over 100,000 people. It was also the rainy season when this happened. So, and they made no provisions of any kind of shelters where people could temporarily even stay, forget rehabilitation. So they just demolished the homes, and they said, now that's up to you where you want to go, but you can't stay here. Also, when the demolition started, that day the
corona cases are over 1 lakh. सो जैसा कि मैंने बताया कि जब गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट ने डेमोलिशन शुरू किया तो उन्होंने ना ही कोई सर्वे किया और ना ही किसी तरीके का डेटा इकट्ठा किया। वो नहीं चाहते थे कि वो लोगों को रिहैबिलिटेशन दें। जिसके बाद क्योंकि इतना बड़ा क्राउड था, किसी के पास भी कोई एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं था। गवर्नमेंट ने कभी किया नहीं और किसी और को ज़रूरत पड़ी नहीं कभी। तो हमने खुद डेमोलिशन के टाइम पे ही लोगों के सर्वे किया। हमने एक फॉर्म बनाया जिसमें हमने लोगों से कुछ डिटेल्स लिए। उस समय डेमोलिशन चल रहा था तो हम जितने लोगों से डिटेल ले सकते थे हमने कोशिश की हमने लेने की। सो उसमें हमने उनके मोबाइल नंबर और किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल हैं और उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, इस तरीके के कुछ डिटेल्स लेने की कोशिश की। So, because the Haryana government, which was the demolition agency, had refused to do any kind of survey before they demolished people because very willfully, not wanting to even know who lived there. So people like Aman self-organized and started doing surveys themselves. They made a quick survey form in which they started asking basic questions like, what was your house number? How many people lived in your home? How long had you lived in your home? Etc. So, yeah. सो जो सर्वे हमने किया उससे हमें एक डेटा मिला जिसमें लगभग सिर्फ 12 से 15% लोगों के पास ही हरियाणा के डॉक्यूमेंट्स थे और क्योंकि डेमोलिशन हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था तो वो उन्हीं कुछ डॉक्यूमेंट्स को अलाउ करते हैं और क्योंकि वहाँ पे माइग्रेंट्स वर्कर्स भी बहुत थे जो अदर अदर स्टेट से वहाँ पे आके रहते थे और काम करते थे तो लगभग अराउंड 38% लोगों के पास अदर स्टेट्स के डॉक्यूमेंट्स थे और एक बड़ा जो वर्क था वो दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स वाला था क्योंकि लोग पढ़ाई के लिए और अपने काम के लिए दिल्ली पे ज़्यादा निर्भर थे। So when the data was collected, they found that even though the Haryana government was carrying out the demolition, the ID cards of the people, because Koregaon is on the border between Delhi and Haryana, only 12% had ID cards that would be eligible for any form of rehabilitation or that the Haryana government would agree to. The rest were, of course, there were lots of migrants from other states, and a majority of people had Delhi ID cards because that's where people went to school or had jobs. हमने अपने सर्वे से जो लोगों के मोबाइल नंबर्स लिए थे, उससे हमने अराउंड 25 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए क्योंकि 2021 में जो व्हाट्सएप ग्रुप की कैपेसिटी थी, लिमिट थी, वो अराउंड 275 की ही थी। सो हमें कुछ ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने पड़े। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए अभी तक लोग हमसे जुड़े हुए हैं क्योंकि हमने लोगों तक जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, उनको पहुँचाने का काम किया इन ग्रुप्स के ज़रिए क्योंकि लोगों को जो आम जनता है उनको नहीं पता चलता कि कोर्ट केसेस में क्या चल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया ताकि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो उसको पढ़ सकें और साथ ही साथ हमने उसको वॉइस नोट्स में भी बनाया ताकि जो लोग हिंदी भी नहीं पढ़ सकते वो एटलीस्ट उसको सुन के समझ सकें और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आती थी रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वो हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया और अभी भी ये चीज़ चल रही है जिसकी वजह से लोग अभी तक अराउंड 5 साल होने को आ गए, लोग अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं। So, Aman and his team Saathi, also made about 25 WhatsApp groups to keep the information going because this is at a time when the membership of WhatsApp groups were capped at 275 per group. So there, as you can see, there are about 25 WhatsApp groups, which include about 6,500 people. And this was done so that information could be given to everyone, in a timely manner. So Aman said that when any court order came, and they were always in English, Team Saathi would translate them into Hindi so that those who could read Hindi would understand. Then they were further made into voice notes and sent so that those who didn't even understand Hindi could listen to them and stay updated. And this
this is the reason that 5 years since the demolition, 4.5, 5 years since the demolition, these WhatsApp groups are still active and people are still connected. हमने क्लाउड डेटा का भी यूज़ किया जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें हमने कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको स्टोर करने का काम किया। इसमें मैं एक फ़ोल्डर हाइलाइट करना चाहता हूँ जो कि है प्रॉपर्टी सर्वे का। डेमोलिशन और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले जो हरियाणा गवर्नमेंट है बेसिकली कॉल्ड एमसीएफ, एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका पूरा नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद। उन्होंने एक थर्ड पार्टी से एक सर्वे कंडक्ट करवाया था बेसिकली फॉर हाउस टैक्स। सो जब मैटर कोर्ट में गया उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जो कि लोगों के लिए आसान नहीं था देना। तो हमने कोर्ट से बोला कि आप ये सर्वे आपने कंडक्ट करवाया है तो आप इस डेटा के थ्रू लोगों को रिहैबिलिटेशन दीजिए। बट इस डेटा को हम और अच्छे से यूटिलाइज कर पाए उससे पहले ही एमसीएफ ने इस डेटा को ही अपने साइड से हटा दिया। बट इस चीज का हमें अंदाजा था इसलिए हमने पहले ही उस सारे डेटा को डाउनलोड किया और अपने पास स्टोर करके रख लिया, जिसकी मदद से अभी हमारे पास अराउंड 6,500 लोगों का वो सर्वे का डेटा अभी भी है। अभी तक तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए बट इन फ्यूचर क्या पता हम उसको कर पाए, इस वजह से वो सारा डेटा हमारे पास है। So a lot of the data that was collected is held online. Aman wants to particularly point at the property survey folder. So he said that the Municipal Corporation of Faridabad at an earlier date had conducted a survey to collect property tax from the residents of Koregaon. And they went to court when the court cases were going on. They said that the Koregaon petitioner said, you have this data that the government has, the Municipal Corporation of Faridabad has, and that should be used for rehabilitation of some 6,500 households. So immediately the Municipal Corporation of Faridabad from their website deleted that data. But they had preempted this and had downloaded this data. So right now in that folder, there are 6,500 household, these tax forms that were there, the survey that was done. They haven't been able to use this yet in the litigation for rehabilitation, but they hope to use it in the future as one of the documents that people live there. साथ में ही हमारा एक ब्लॉग पेज भी है और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हम लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं और अवेयरनेस फैलाते रहते हैं वीडियोस के ज़रिए या फिर अपने ब्लॉग्स के ज़रिए, ताकि ये चीज़ जो हमारी आवाज़ है वो और लोगों तक पहुंच सके। So there are YouTube blogs and other platforms where you can connect again under Team Sathi, and you can see the documentation there as well. इन सारे जो डॉक्यूमेंटेशन और आर्काइविंग का फ़ायदा जो हुआ हमें, हम हरियाणा गवर्नमेंट से लगभग 1200 से ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए रिहैबिलिटेशन ले पाए। अभी उन फैमिलीज़ को फरीदाबाद के डबोआ कॉलोनी में 1 बीएचके फ्लैट्स मिले हैं और मोस्ट ऑफ द फैमिली वहाँ पे अभी रहने भी लगे हैं डेमोलिशन के बाद से। आगे। हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि हमने सिर्फ 12% लोगों को ही रिहैबिलिटेशन अभी तक हम दिलवा पाए हैं। हमारी जो मेन लड़ाई है वो बाकी के बचे हुए 88% लोगों के लिए है, जिसके लिए हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और अपनी बातों को अलग-अलग जगहों पे जाके रख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। सो थैंक यू। हाँ जी, बस एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। बताना पड़ेगा आप कौन हो। 12% की बात कर रहे थे अमन कि लोग एलिजिबल हैं। फरीदाबाद में पहला एक केस है, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं,
सोलेशियम किसी को नहीं मिला है। 2000 रुपए जब से घर टूटा है अब तक, और जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक 2000 रुपए प्रति व्यक्ति को हरियाणा सरकार को देना पड़ रहा है। Thank you, Aman. Rishik will do the next presentation. Rishik's from Indore. Rishik? ये गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ऋषिक वाकोड़े है। मैं इंदौर, जिसे भारत की सबसे स्वच्छ सिटी कहा जाता है, वो सिर्फ कहने में है, दिखने में नहीं है। तो मैं उस सिटी से बिलोंग करता हूँ और बड़े ही दुख की बात है, जिसे क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है, उस क्लीनेस्ट सिटी में पानी पीकर लोग मर रहे हैं। अभी रिसेंटली 14 लोगों की जान इंदौर में पानी पीकर गई है। तो रोटी, कपड़ा, मकान तो 3 चीज़ें हो गई, अब पानी ऐड हो चुका है इंदौर में कि पानी भी स्वच्छ मिलना चाहिए। और कई लोग हॉस्पिटलाइज भी है, और कई लोग जैसे इंदौर को जो साफ़ करते हैं लोग, जो इंदौर जो साफ़ सिटी कहलाती है, वो बस्ती के लोगों के कारण कहलाती है, क्योंकि वहाँ पर झाड़ू मारने कोई सो कॉल्ड अमीर लोग नहीं जाते। अगर वो झाड़ू मारे तो हम भी माने कि ठीक है, शहर तुम्हारा भी है, तो शहर हमारा है, ना कि उनका। तो इसी की पहल के लिए हमने एक नई चीज़ चालू करी थी, IHS और MPNNM, जिसका मैं हिस्सा हूँ। उसके साथ मिलकर हमने मैपिंग का एक नया वो चालू करा था, जिससे हमने इंदौर की कई बस्तियों को डिकोड करा, निकाला कि कितनी बस्तियाँ हमारी इंदौर में हैं, कितनी एग्जिस्ट करती है, कितनों को तोड़ दिया गया और कितनों को फिर से मकान दिए गए। तो हमने उसके लिए ये हमारा काम करा था। तो जैसे मैंने करा था वो मैं आपको बताता हूँ। So Rishik said that he's from Indore, which is considered the cleanest city, which has got the title of the cleanest city in the country, but unfortunately it doesn't look very clean. And recently, some 14 people in this cleanest city in the country have also died because of water contamination. So he's saying that, the slogan of Roti Kapra Makan, we have to add water to that as well now in our demands in Indore. And he also said that, to keep the city clean, actually it is the people who work and who actually clean the city are very invisibilized in the city. And he says that if it is everyone's cleanest city, then everybody should be doing it to keep the city clean. Everybody should pick up the broom and clean the city, and shouldn't just only be the few people who've been invisibilized. To take this forward, Rishik is going to now present the work on the informal settlements that he has done and his team has done in Indore. So these are the bastis that exist and those that have been evicted. तो सबसे पहले हमने इंदौर में जितनी बस्तियां हैं उनका एक सटीक स्थान देखा कि बस्ती कहाँ पर लोकेटेड है और कितने साइज़ में बस्ती बसी हुई है। और इसका मेन मकसद ये था कि हम जो स्टेक होल्डर्स है, जो सरकार है, जो नगर निगम है, उनसे डायरेक्ट अपनी बात कर सके कि जो आप हमको डाटा देते हैं कि इंदौर में बस्ती ने कब्जा कर रखा है, पूरे इंदौर में गंदगी कर रखी है, तो हम उसका एक सटीक जवाब दे सके कि नहीं, आप जो कहते हैं, जैसे दिल्ली में कहा गया था कि बस्तियों ने कब्जा कर रखा है, पर जब वो डाटा निकाला गया तो उसमें पता चला कि 1% से भी कम 0 पॉइंट कुछ परसेंट में बस्तियां बसी हुई है। तो ये भी सेम हालत इंदौर में भी है और कई घर तोड़े भी गए इंदौर में। तो ये हमारी करने की पहल थी इसके पीछे। और इंदौर में हमने और इसके अंदर जैसे सबसे लास्ट में एक है जो मैंने अभी बताया आपको कि जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं बस्तियों पर कि इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और ये गंदगी फैलाते हैं। हालाँकि ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप इंदौर की बस्तियों में आओगे तो आपको पता चलेगा कि शहरों से ज़्यादा स्वच्छ तो बस्तियाँ होती है हमारे इंदौर की। तो I won't translate what's on the slides. I'll just add to what Rishik has said. He said that a similar exercise had happened in Delhi because there is this sort of, public perception that bastis have taken over a lot of land, and that it's an encroachment of public land. But when a similar exercise was done in Delhi, we found out that only less than 1%, about 0.6% of Delhi's land is under bastis. So a similar sort of exercise,
Rishik and his team have done in Indore, and also to sort of dispel this, this idea that, bastis or informal settlements are unclean places. He's saying that, when you visit bastis in Indore, you will realize that they are cleaner than many large cities in the country. तो हमने इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमारी 4 टीम बनाई गई, जिसमें हम 12 लोग थे। 12 लोगों में आपको जिनके नाम दिख रहे हैं, वो सब हमारे साथ थे और इसमें हमने आईएचएस और एमपीएनएनएम की टीम की देखरेख में पायलट मैपिंग की गई और इसके अंदर हमें बहुत सारी चुनौतियाँ भी फेस करनी पड़ी। हमको बहुत आसानी से नहीं मिल गया ये। जब हम ग्राउंड लेवल पे पहुँचे तब हमें पता चला कि हकीकत ये है। तो इसके अंदर हमारी टीम बनाई गई, उसको हमने टारगेट दिए कि हम रोज़ के 10 से 12 बस्तियाँ करेंगे। हालाँकि स्टार्टिंग में बहुत कमी आई, हमने 2-3 बस्तियाँ ही करी क्योंकि बहुत परेशानियाँ आ रही थी क्योंकि जब हमने एक रूम में बैठ के सीखा, तो उसको सीखना आसान था, पर उसको जब ग्राउंड लेवल में करना था, तब हमें पता चला कि हकीकत में वो कितना मुश्किल था। तो हमने फिर भी उसको डन करा, चुनौतियों को फेस करा क्योंकि हमें लगता था कि अगर हम पहल करेंगे तो कहीं न कहीं से हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे तो हम हमारी बस्तियों को बचा पाएँगे। तो हमने ये पहल करी और हमने रोज़ फिर जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, हमने 10 से 12 बस्तियाँ कवर करना चालू कर दी। So to do this work, Rishik anchored, 4 teams, and the names of his team members are also there in the presentation. He said it was very difficult initially to do this work, and when they started it, they thought that they'll be able to do it quickly, but they then realized that, maybe started going to the bastis, went on the ground, realized how difficult it was to do this. So there was an initial sort of a pilot survey of these bastis that had happened in the IHS training, in the fellowship training. And after that, to do it in the whole city, these people decided that they'll go to 10 to 12 bastis in a day, found it very difficult, but yet continued to do it and found their rhythm. ये जैसे आप देख सकते हैं कि बस्तियों के आकार कुछ ऐसे होते थे कि जिसमें स्क्वायर शेप में भी कोई बस्तियाँ होती थी, जिसको हम आसानी से कर सकते थे। पर कुछ बस्तियाँ ऐसी थी जो हमें हुँ। 1 सेकंड पीछे पीछे आ थोड़ा-सा, जाओ। जिसके अंदर आप देख रहे हो ना एक ड्रेनेज दिख रहा होगा आपको, उसके जस्ट पीछे से है ना बस्ती खत्म होती थी। तो हमें कई-कई जगह पे जाके भी करना पड़ता था, पर कई-कई जगह पे हम साइड से ही करके लोगों के घर में से घुस के पॉइंट्स लेते थे। ऐसे हमने इसको डन करा। So he said one of the big challenges of mapping these bastis was that it's not just the bastis are not made in like a square formation, and you had to go through like if there was a drain, then how are you going to get that part mapped, because you're trying to get the land area under the bastis, you're trying to map the land area under the bastis. So if there was a drain, how were you going to do it? There are many times that they had to go inside people's homes to get to the back of the basti because that was the only way to be able to get to that point to map it. So these were some of the challenges that they faced. अब इसके अंदर 2 प्रोसेस होती थी, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। तो हमने अधिकतर मैनुअल से ही करा है, जो ऑटोमेटिक में करा है जिसमें आपको एक्स्ट्रा डॉट्स दिख रहे होंगे। जिसमें ज़्यादा डॉट से थोड़ा उथल-पुथल हो गया है, पर वो भी सही बस्ती डिकोड करी क्योंकि वो बस्ती उस आकार में थी। और ये हमारी बस्ती हमने इस तरह से करी थी, जिसमें हमने मैपिंग्स इस तरीके से करी थी जिसकी 400 से ज़्यादा 550 से भी ज़्यादा मैपिंग्स है हमारी। So these are some of the examples of the the way the bastis are placed, like on the land area of the bastis. So he's saying that where you can see more dots, they were done more automatically, but a lot of them were done manually because you had to literally go and walk. And as you can see, the way that the bastis are and how different they are, each one of them looks so different. So to map it and to walk in each basti and then kind of get a map like this, till now they have mapped about 550 bastis like this in Indore. And Rishik, आप बताना चाहेंगे कि वो वाली बस्ती कितनी बड़ी है? हाँ, वो बस्ती कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के अंदर थी, जो कि हमने बाइक से कभी चढ़ के, कभी उतर के, नाले पार करके, कचरा-कूड़ा पार करके हमने उसको डिकोड करा था।
So if you see the map which is here at the bottom, that is a basti that's about 5 to 6 kilometers long. So they walked part of it. They went on the bike. They went through people's homes. They had to cross drains. They had to walk through garbage to be able to do this. So that was the size of, that was one of the larger bastis in the city that they mapped. अब ये जो हमने करी इसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इतनी आई कि हमने इसमें कमी लिखी है तो वो बता देता हूँ। ज़मीनी स्तर की जो समस्या थी जैसे जो ज़मीनी स्तर पर जो लोग रहते हैं, अब हमने जब लोगों के साथ हम उतरे तो हमारी बस्ती तो हमने कर ली जो जिसको हम जानते हैं, पर जिसको हम नहीं जानते हैं उसको जाकर करना बहुत मुश्किल था। हमें नहीं पता था कि बस्ती कहाँ ख़त्म होती है और कहाँ से स्टार्ट होगी। तो हमने लोगों के साथ मिलकर उनको बताया और उन्हीं लोगों को सिखाया भी कि हम ऐसे-ऐसे करते हैं। उनमें से भी लोगों को निकाल कर हमारे साथ हमने मैपिंग का हिस्सा बनाया। और फिर कुछ बस्तियों में लोगों का भरोसा जीतना मुश्किल था। लोग भरोसा नहीं करते थे, उन्हें लगता था तोड़-फोड़ के उससे तो नहीं आए हैं। तो कई जगह पर हमसे भिड़ भी जाते थे लोग, फिर हम उनको समझाते थे नहीं आप गलत समझ रहे हैं, हम इस इससे आए हैं। तो मतलब हो गया था, हमने कर लिया था उसको भी हैंडल। फिर भाषाएँ, हर बस्ती में अलग भाषाएँ बोली जाती थी। हम हिंदी बोलते, किसी में कोई दूसरी भाषा बोली जाती थी, तो उसमें भी हमको परेशानी आती थी। गर्मी और बारिश, हमने दोनों में काम करा है। जैसे जब गर्मी हमारी खत्म हुई तो बारिश लग गई थी। तो गर्मी के पसीने में भी और बारिश के पानी में भी हमने काम करा दोनों में। और जो है कि टाइम जब हमने स्टार्टिंग में जब चालू करा तो हमें बहुत टाइम लगने लगा कि एक बस्ती को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमने उसका भी एक समाधान निकाला, उसका भी हमने एक क्लू निकाला, तो हमने उसको भी सही कर लिया। और सही सीमा तय करने की पहचान भी, जैसे अब अगर हम किसी बस्ती में हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें कि हमें एक्यूरेट बस्ती का नक्शा मिल जाए, क्योंकि अगर बस्ती गलत आती थी तो हम शाम को स्क्रीनशॉट निकाल कर उसको देखते थे कि हाँ, इतनी ही बस्ती है क्या? अगर नहीं होती थी तो हमें फिर से जाके उसके ऊपर मेहनत करना पड़ती थी। तो हमने हमारे लोगों के साथ बैठकर टीम में चर्चा कर सारे लोगों ने जो-जो क्लूज़ निकाले उसके साथ करा और हमने बहुत पेशेंस और धीरे-धीरे काम करा, तो भी हमारा जल्दी काम फिनिश हो गया। So he said that he's listed some of the challenges. There were many more, but he's listed few. So one of the big challenges was that the bastis that they were familiar with, they could go and do it quickly. But in bastis that they were not known, people would also be like, where have you come from? Why are you doing this? Are you doing that? Are you from the government? Are you going to break the basti? So there was a lot of mistrust, and they had to kind of build that trust with people and say, this is what we are doing. And this is, we are from Madhya Pradesh, Navnirman Manch, and this is what we want to do in every basti in Indore to kind of get them on the side. They won trust over many places. He said people also started fighting with them and said, no, you can't do it in our basti. You leave. We don't trust you. You leave. So to slowly really build that trust was also part of this process. It wasn't just mapping. Some people also joined in the mapping. So they taught them also how they were doing it on their phones and how they would take the points and got them in. Language was one challenge because they spoke Hindi, but there were many other migrant communities or other languages that are spoken in Madhya Pradesh. So they didn't really know the language of the people that lived there. So the communication there was very difficult. They also did this mapping during peak summer, North Indian, like Central Indian summer, and then the rainy season. So the moment, the summer ended, the rainy season started, but they still continued to do that work. And it wasn't easy to just, initially when they started mapping, it wasn't just like it was coming accurate every time. So every day after finishing the day's 10 to 12 bastis, the mapping of those, they would come back, take a screenshot and say, did it actually look like this? Is it correct on the map? And if it wasn't, then they'll go back again the next day and remap the basti. थैंक्स जय भीम। और एक और लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा कि इसको हम ही लोगों ने पूरा करा है, इसमें हमारी कोई सरकार, जो ये काम सरकार को करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। और इसमें सबसे स्पेशल थैंक देना चाहूँगा मैं गौतम का। सबसे पहले ट्रेनिंग मास्टर प्लान की गौतम ने दी थी मुझे, उसके बाद रुचिका, राशि, आनंद दादा और ये सारी मेरी टीम जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अगर ये नहीं होते तो हम ये इतना बड़ा वो नहीं कर पाते। और हमने इंदौर में कम से कम
570 से भी ज़्यादा बस्तियों को डिकोड करा। उसमें से कुछ बस्तियाँ टूट चुकी थी, कुछ नहीं थी, उसको भी हमने उसमें ऐड करा। तो हम एक्यूरेट अब सरकार से डायरेक्ट हमारी माँग रख सकते हैं कि आपने जो डाटा निकाला है, जो भी आपने निकाला है, उसके अंदर हमारी ये परेशानियाँ हैं, हमें बताओ कि हमारी बस्तियों ने कितने जगह पर कब्ज़ा कर रखा है। जो आपने बताया, अगर आप झुठलाते हो तो हमें हमारी ज़मीन हमको वापस करिए। ठीक है, थैंक यू। So Rishik wanted to end by saying that this work that was done was so that they could go to the government and say and demand that to kind of be able to that this work actually, which is the work of the government, is something that they have done, and that they did it over 2 seasons in a year. So it's something that they should have been doing, but they have done it for the government, and now they have this data and they would like to be able to use that data and say to the government that this is where our bastis are. Tell us how much land is under them. And if you think if it's too much, then tell us. And if it isn't, then just give us the land that we are residing on and, try and make those places better. He also thanked Gautam for the first master plan class that, was done in the fellowship. And then this was part of the GSL lab at IHS. So our colleagues Amrut, Akbar was also there, who's done the mapping in Delhi. They were there and they trained everyone on how to use, on how to conduct and sort of do this kind of mapping. And he's grateful for that. And that right now they have over a data set of 570 bastis. Some of these don't exist anymore, have been demolished, but they've gone and got the land area under those bastis as well and hope to do more work with this data. Yeah, thank you. मेरा नाम राकेश हैरवार है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं एक ईंट भट्टे का मजदूर हूँ। मैं एक ईंट भट्टे का मजदूर हूँ जो कि मुझे मास्टर प्लान और अपना ये मैपिंग, सोशल मीडिया, संविधान और इसे क्या कहते हैं, हेल्थ केयर पे मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली है, वो भी इंदौर वर्कशॉप में अटेंड की करके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक भट्टा मजदूर हूँ, तो आप इससे जानकारी ले सकते हैं कि मैं कितना पढ़ा होगा, मतलब पढ़ाई मैंने कहाँ तक की होगी। जबकि ऐसा नहीं, मैं एक 9th फेलियर लड़का हूँ और घर का प्रेशर होने की वजह से मुझे ये सब काम करना पड़ता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर पे था, तभी हमारे यहाँ जब ये मीना दीदी मध्य प्रदेश नवनिर्माण मंच का संगठन बनाने आई, तो मैं घर पे था। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का काफ़ी शौक़ था। तो ये लोग संगठन बना के 15-20 महिलाओं के साथ बातचीत कर रही थी, जो कि हाउसिंग पे था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं जाके इन लोगों के बाजू से बैठ गया और मैंने वहाँ पे बैठ के इन लोगों की फ़ोटोग्राफ्स ली, इन लोगों को दिखाया। तो इन लोगों को अच्छा लगा कि यार ये अच्छा लड़का है, फ़ोटो भी खींचता है और हम लोग के साथ ही बैठता है। तो इन लोगों ने मुझसे बोला कि आप मेरे साथ टाइम दे सकते हो मुझे टाइम? मैंने हाँ, थोड़ा बहुत दे सकते हैं, पर टाइम के हिसाब से जब मुझे टाइम होगा, क्योंकि मैं एक मजदूर हूँ। तो इन लोगों ने मुझे काफ़ी फ़ोर्स किया कि नहीं, आप कर सकते हो, आपको करना होगा। फिर जाके मैंने किया, तो इंदौर वर्कशॉप में आके मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, जो कि आज आप खुद सामने देख रहे हैं। ये एक भट्टा मजदूर है और एक राकेश है। एक अलग ही सरकार तो डेवलपमेंट करती है, जैसे कि स्मार्ट सिटी का निर्माण, पर IIHS और ये नवनिर्माण मंच ने मुझको ही डेवलपमेंट कर दिया है, जो कि पूरा चेंज, जो कि आज मैं बोल पा रहा हूँ तो सिर्फ IIHS और नवनिर्माण मंच की वजह से बोल पा रहा हूँ। बाकी तो पहले बहुत डर लगता था किसी के सामने भी बोलने के लिए, और आज मैं इतना खुश हूँ कि इतनी बड़ी वर्कशॉप में आके मुझे बोलने का मौका मिला। ये हमारे सागर का Make by translate kar. So Rakesh shared he shared that he had worked as a brick kiln worker, and because there were challenges in the family, he was only able to study till class 8th, and then he took up the job of a laborer, and he one day Meena,
came to his basti and was doing a meeting, a community meeting with 10 to 12, 15 women. And Rakesh had a great interest in photography and wanted to learn it. And Meena must have been doing all of that over there. So he came and he just sat next to them to listen to them and what she was talking. And he really liked it. And so Meena also said, you've listened to this meeting. Do you want to join us? Do you want to join Madhya Pradesh Navnirman Manch? Do you want to work with us? So Rakesh said that, he told them that he'd love to, but that he worked as a laborer. He might not have a lot of time, but yet that space was given. And then he came to the indoor workshops for the fellowship. And he learned about the constitution, about master plan, about mapping. And he can see and sense, he feels great pride that he can sense that change in himself, that he is now here and presenting this work. And he feels very proud of that. And we also feel very proud of him. Yeah. सागर में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हाँ बस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने तो एक मीटिंग हॉल में जाके ट्रेनिंग ली थी। कम्युनिटी से निकल के मैंने एक मीटिंग हॉल में ट्रेनिंग ली और उसको प्रेजेंट किया मैंने एक फील्ड पे जाके। और फील्ड पे जाके प्रेजेंट ऐसे किया कि जो कम्युनिटी के लोग थे मेरे ही जैसे, हालांकि वो कॉलेज वाले थे और हाई स्कूल वाले थे, उनके लिए मैंने ट्रेनिंग भी दी और साथ ही साथ मैंने मैपिंग भी की। मैपिंग ऐसी की कि मतलब उन लोगों से बोला कि ये कोबो कलेक्ट ऐप है, इससे मैपिंग होती है, आपको कहाँ पे कैसे क्या पॉइंट डालना है, तो मैं उन लोगों को बताता गया। तो उन लोगों ने मैपिंग भी की और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी की। तो हम लोग के दोनों काम एक साथ ही हो गए। So Rakesh is drawing your attention to these two photographs. So on the left is where he took the meeting, took the workshop on mapping and the master plan, and Gautam is there. And, that's where he learned all of these things. But when he went back to Sagar, where he's from, he taught people directly on the road. So the volunteers were called and he would take them directly to the bastis, stand on the road, and whatever he'd learned in the workshop, he taught them there. So he said, I'll teach you, even though they were college graduates, some were in high school, they were volunteers with Madhya Pradesh Navnirman Manch. He said that, I'm going to teach you also, and we're going to get this work done also. So we are not going to do this somewhere else in a room where you can learn and then go out later on. We're going to do it directly on the field, and I'll teach you also, and we'll get this work done also. जैसे कि देखा जाए तो हर शहर में सरकार का यही कहना रहता है कि जो शहर में स्लिम बस्तियां रहती हैं, जो वंचित समुदाय के लोग निवास करते हैं, सरकार का कहना ये रहता है कि इस शहर के काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैली हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और इस चीज़ का हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हम लोग बता सके कि सर ऐसा नहीं है, हम बहुत कम जगह में निवास कर रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये मैपिंग की। और मैपिंग जब की तो उसमें हम लोगों के लिए एक आइडिया नहीं था कि कौन सी बस्ती कहाँ पर स्थित है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की, जैसे मीना दीदी, दादा और मैंने और विपिन भाई ने। तो हम लोगों ने एक नगर निगम में एक आरटीआई लगाई। तो आरटीआई से हम लोग के लिए स्लिम बस्तियों की सूची मिली, जिसमें 58 बस्तियां थीं। तो हम लोगों ने लिस्ट के हिसाब से बस्तियां ढूंढी और बस्तियों में गए, तो उन सबकी मैपिंग भी की। और मैपिंग के साथ साथ ये भी देखने को मिला कि मैप में रियल में बहुत सी बस्तियां गोल ही हैं, मतलब बस्ती है पर मैप में दिखाते नहीं है, क्योंकि आने वाले मास्टर प्लान में हो सकता है वो बस्तियां वहां से गायब कर सकते। So Rakesh said that to do this work, they filed. So he said in the beginning that, the government always says that, there's too much land that is being encroached under bastis. So he's saying, but where is the proof of that? So he says, he's like, if you ask the government, where is the proof of how much land we are actually occupying? And then the government will say, we have no such data. So that is why this mapping exercise was done. To do it in Sagar, which is a tier 3, tier 4 city in Madhya Pradesh, they filed a right to information
information application to get the list from the government of the number of informal settlements that exist in the city. They got a list of 58 settlements, and then they went and they mapped them. He also said that as you can see, I think that in the central image, he said that there are many bastis that exist, but on the map, you can't really see anything. So he's saying when the next master plan will come for Sagar, the government can easily say, this is empty land. But we wanted to map it right then to say, no, we have this data and a basti exists here. जैसे कि अभी मैंने मैपिंग पे बात की, तो देखा जाए तो सागर शहर, चाहे वो इंदौर हो या दिल्ली या बेंगलुरु, इन सभी शहरों से काफ़ी छोटा है। पर हम लोगों ने ये सोचा कि जैसा वहाँ पे तोड़-फोड़ चल रही है, ऐसा हमारे सागर में भी कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पहले से तैयारी करके रखी है। जैसे कि अभी ऋषिक भाई ने बताया कि सरकार के सामने हम अपना सबूत रख सकें कि हमारे पास प्रूफ़ है। जो आप बोलते हो ना कि शहर के चारों ओर आप लोगों ने, बंज समुदाय वाले लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करके रखा है, तो हम लोग के पास एक प्रूफ होगा। जैसे कि दिल्ली शहर का आंकड़ा निकल के आता है, जो डेटा 0.05 था। तो जब इतने बड़े शहर में इतनी कम जगह है, तो हमारा शहर तो पहले से ही छोटा है, उसमें कैसे ज़्यादा जगह होगी? तो इसीलिए हम लोगों ने ये मैपिंग की है। So what he's saying is that Sagar is again like a tier 3, 4 city and is much smaller than cities like Bangalore and Delhi and Indore. And so he's saying, imagine if it's only little bit of land in these larger cities, Sagar itself being a smaller city, even less land is under informal settlements. So tomorrow when the question arises that, we are, that too much land has been encroached, we want to be able to have this kind of public data set that challenges this notion even in a city like Sagar, which is, much smaller. इस कार्य को आगे ले जाने की योजना, मैं एक कुशल आंदोलनकारी के रूप में काम करना चाहता हूं और मैपिंग मास्टर प्लान और सोशल मीडिया मध्य प्रदेश के दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और उन लोगों के लिए सिखाना भी चाहता हूं, ताकि कि आपके यहाँ कोई भी ऐसी समस्या हो तो आप खुद से ही लड़ सके। So to take this work forward, he wants to continue to work with the urban poor on these various issues, especially around housing. And he wants to build more capacities of people so that communities can raise these issues themselves and there is no middlemen negotiating for them. And that's the work he wants to continue to do in Sagar and in Madhya Pradesh. मैं सभी तरह की स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप को अटेंड करना चाहता हूं और इन सभी, ताकि मैं इसमें काफ़ी मजबूत हो सकूं और बस्ती के लोगों के लिए भी और भी मजबूत कर सकूं। So in the end, Rakesh says that he is going to continue to occupy spaces at the state level, at national level, internationally, continue to build his capacities and share back what he has learned in the communities that he's a part of. And that's his plan. So, yeah. मैं एक लंबे समय तक फेलोशिप या MPNNM का प्रोजेक्ट चाहता हूं, ताकि मैं अपने घर परिवार का भी ध्यान रख सकूं। धन्यवाद। जय भीम, जिंदाबाद। So everybody who's sitting here, he is requesting that we all get together and continue to support the great work that Madhya Pradesh Navnirman Manch does, so that he can continue to be a part of that campaign and support his family also and support many communities also. Jai Bhim. So these were our presentations. So the floor is open for any questions. If you can please speak in English, and I'm happy to again translate your question. But if you can speak in Hindi, then please just do that as well. पहली बात तो मैं मीना जी और उनकी टीम का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 3 करोड़ 30 लाख का आपने जो बजट सैंक्शन करवाया है कामों के लिए, मेरी जानकारी से एक MLA जो पार्षद होते हैं उनका एक साल का बजट होता है 3 करोड़ रुपए मैक्सिमम, कि वो उतना ही अलॉट कर सकते हैं। बट आपने किसी
पॉलिटिकल पावर के बिना या फिर किसी गवर्नमेंट के पावर के बिना इतना बड़ा काम किया है, तो बड़ा ये बहुत ही प्रशंसनीय है, पहली बात तो। थैंक यू। दूसरा जो मैं कुछ एक्सपीरियंस किया हूँ मेरे काम में, तो जब आप ये काम सैंक्शन करते हो तो वहाँ पे आपको जो लोकल बॉडीज़ होती है, तो वहाँ पे एक ऐसे लोग बनते हैं जैसे कि आरडीओ हो, बीडीओ हो या फिर चुन के आए हुए जो लोग हो, उनका कुछ परसेंटेज होता है। आप कितना भी उनको अर्जी करो या फिर आरटीआई फेस करो, तो उनका होता है कि आपके काम में कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ निकाल देते हैं कि आपको फिर से लौटना पड़ता है, फिर उस काम को रीस्ट्रक्चर करना होता है और फिर उसको अप्लाई करना होता है। तो ये चक्कर में आप कभी ना कभी अपनी जो मानसिक स्थिति होती है, वो हम कभी छोड़ देते हैं कि चलो अब इतना करने से नहीं हो रहा है। तो मैं बस आपसे यही जानना चाहूँगा कि ऐसा कुछ आपने फेस किया है, जो भी काम आपने किया है, या फिर अपकमिंग जो भी काम्स आपके होंगे, उसमें अगर ऐसा कुछ फेज़ आए, तो आप कैसे उससे डील करोगे? पहले थैंक यू। थैंक यू। आप सबको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और सुन के बहुत अच्छा भी लगा और थोड़ा एक होप भी हुआ कि अभी भी हम इस प्रकार का काम अच्छे से कर पा रहे हैं। मैंने भी कुछ संस्थाओं के साथ काम किया है इन मुद्दों पे, तो बस एक चीज़ कई बारी मेरे मन में रहती है, वो ये है कि आप लोग अभी सब लीड कर रहे हैं तो इसलिए सब जुड़े हुए हैं, पर क्या हम लोगों की इस प्रकार की क्षमता बना पा रहे हैं कम्युनिटी में कि अगर किसी कारण से आप ना हो आप चारों, तो क्या भी वो किस किस तरीके से वो काम को हम चालू रख पाएँ? तो उस पे अगर आप लोग थोड़ा गौर कर पाएँ। दूसरा जुड़ा हुआ सवाल ये था कि मैंने देखा है कि जैसे आपने मूलभूत सुविधाओं की बात की, तो मूलभूत सुविधाओं में तब भी थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी आने का चांस होता है और उसमें लोगों का शायद डर कम होता है, तो लोग उसके अराउंड ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। पर मालिकाना हक, टेन्योर, पट्टा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि आप अपने कागज़ सामने कर रहे हो, आप अपने आप को मतलब दिखा रहे हो स्टेट को, यू आर विजिबलाइजिंग योरसेल्फ टू द स्टेट। तो इस पे थोड़ा अगर आप गौर कर पाएँ कि इन दोनों चीज़ों के बारे में कैसे सोचा जा सकता है, चारों लोग या जैसे भी आप लोग उत्तर देना चाहें। बट थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। पहली बात तो ये है कि बहुत टेढ़ी खीर होती है सरकार से काम करवाना, बहुत ज़्यादा। पूरा महीना, महीना भर उनके यहाँ विभाग में जाके बैठो आराम से और बिल्कुल उनके ना सर पे बैठ जाओ जाके कि ये काम डला है, आरटीआई लगाओ, विधायक से मिलो, सांसद से मिलो, पार्षद से मिलो और जो अकेले से नहीं होता, पहली बात तो ये है, अपन को अपनी पूरी टीम चाहिए होती है और टीम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है अगर अपना संगठन मजबूत है तो। अगर हमारे पास 25 महिलाएँ हैं, तो महिलाओं का तो पावर वैसे ही चलता है कि नहीं? तो एक तो मैं महिला हूँ, कोई मुझसे वैसे बात नहीं कर सकता और करेगा तो उसे बहुत अच्छे से सिखाना आता है मुझे। तो हमारा सीधा-सा रहा है कि हमने स्टार्टिंग में और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है हमारे लिए तो सोशल मीडिया ने। हमने भी ऐसा नहीं है बहुत विभागों के चक्कर लगाए हैं क्योंकि ऐसे ये पैसे नहीं निकले हैं और काम स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो हम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, जहाँ वो नहीं सुनते एक बार उनको बोला, उनने अगर वहाँ से मना किया नगर निगम गए, उनने बोल दिया बजट नहीं है। ठीक है, विधायक के पास गए, विधायक ने कहा अरे ये काम तो पार्षद का है, पार्षद से करवाओ तुम। तो फिर हम पार्षद के यहाँ गए और जब वो कोई नहीं सुनता है तो फिर कलेक्टर के पास गए और जन सुनवाई में अगर कलेक्टर ने नहीं सुना तो कलेक्टर से पर्सनली मिलने चले गए कि सर ऐसा-ऐसा है, इतनी बड़ी प्रोसेस चल चुकी है, हम लोग सब कर चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा। वो तो बोल देते बजट नहीं है। उसके बाद में अगर तब भी काम नहीं होता है तो फिर बस्ती में जाके महिलाओं से वीडियो बनवाना कि विधायक, पार्षद, सांसद सबके यहाँ होके आ गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारे लिए अब क्या ऑप्शन बचा है, तो वो आप देख लो। तो उस तरीके से वीडियो का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि फिर विधायक से लेके पार्षद और जो बीच में खाने वाले हैं पैसे, तो उनको जवाब देना पड़ता है। सीएम हेल्पलाइन एक ऐसी सुविधा है कि अगर आप एक बार कंप्लेंट डाल देते, तो जब तक उसका नहीं हो जाता, रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तब तक वो चलती है हर जगह। तो मैडम आप वापस ले लो, हम कर रहे हैं काम, तो कब कर रहे हो? करके दो तो मैं वापस लेती हूँ। तो ऐसे करके हम लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष करा, उसके बाद में ये पिछले 1 साल की मेहनत है जो अभी दिख रही है आपको। तो हम लोगों ने और ऐसे ही रणनीति बनाई है कि अगर हमसे नहीं होता है तो फिर हमने बस्ती में महिलाओं को शिक्षित भी किया है और सारी चीज़ों की जानकारी दी है कि तुम्हें किस विभाग में जाना है, किस तरीके से बात करना है। कोई अच्छे से बात कर रहा है तो अच्छे से बात करनी है और कोई अगर बहुत अच्छे से बात कर रहा है तो तुम्हें अपनी बात उस तरीके से रखनी है कि ऐसे कैसे बोल सकता है तू?
तेरा काम है, तुझे करके देना होगा। तो फिर इस तरीके से वो डर भी जाते हैं कि ऐसा है कि फिर ऐसा ना हो नौकरी चली जाए, तो वो हो जाता है। और क्या पूछा था? सॉरी मैं भूल गई। हाँ, कोई नहीं। तो वो सुकृत का है सवाल, वो कोई भी आंसर कर सकता है। तो राकेश आप करेंगे? जो ये सुकृत भाई का सवाल था ना कि लोग अपना पट्टा दिखाने से तो डरते हैं, है ना? कि मूलभूत सुविधाओं में तो लोग आगे अपना फिर भी आगे आके पूछ लेते हैं, बट अगर पट्टा दिखा रहे हैं तो एक तरीके से सरकार को भी पता चल रहा है कि आपके पास पेपर नहीं है उस जगह के और आप बैठे हो। तो उसमें अगर डर लगता है तो उससे आप कैसे, अगर पट्टे की बात मीना भी कह सकती है, ऋषिक, अमन भी इस पे, अमन इफ यू कैन ऑल्सो। हमारे यहाँ सागर का ऐसा है कि लोगों ने एक नया नियम बनाया है कि जब कोई भी, चाहे वो विधायक हो या वो पार्षद हो, चाहे मतलब वो कोई भी अधिकारी हो या पॉलिटिक्स वाला हो, जब सब जगह हम लोग ठोकर खा लेते हैं जाके, तो वो नहीं सुनते, तो फिर एक ही तरीका अपनाते हैं। जिस बस्ती का कार्य है, जिस कम्युनिटी का, तो उन कम्युनिटी वालों के लिए हम लोग जानकारी देते हैं, मीडिया वालों को भी बुलाते हैं, और फिर हम लोग जाके चक्का जाम जैसे काम भी करते हैं। तो ऑटोमेटिक वहां पे एसडीएम भी आएगा, कमिश्नर भी आएगा, सभी लोग आएंगे, तो फिर उन लोगों को मजबूरन करना पड़ता है। फिर चाहे उसका भूमि के लिए मतलब पट्टा का आवेदन हो या कुछ भी कार्य के लिए हो, फिर उन लोगों के लिए मजबूरन हो जाते हैं कि वो करना पड़ेगा, क्योंकि अब सभी अधिकारी वहां पर हैं, सभी की इमेज खराब हो गई। और हम लोग कभी ये भी नहीं करते कि किसी के पुतला बना के जला दें, चाहे वो, क्योंकि पता चले कि जिससे हमें काम करवाना साला उसी का पुतला जला दिया हमने। सुकृत के 2 सवाल, दूसरा सवाल ये भी था सुकृत का कि आपको लगता है कि आपने जो काम किया है आप चारों ने, है ना? तो मे बी ऋषिक या अमन इस पे गौर कर सकते हैं कि आपने जो काम किया है, आपको लगता है कि इतनी आपने दूसरे लोगों की भी क्षमता बढ़ाई है कि अगर आप ये काम करना छोड़ दें, जो आप अभी कर रहे हैं, तो क्या लोग वहाँ पे जो हैं बस्तियों में, क्या वो ये काम जो आपने शुरू किया है, वो आगे और चला पाएँगे कि नहीं? एक तो ये उनका सवाल, तो मे बी ऋषिक, अमन आप दोनों में से एक अगर कोई बोल सके। जैसे आपने जो बोला कि तो तैयारी तो हमारी अभी हम 4 ही लोग दिख रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है हमारी। जो हमारी सारी बस्तियाँ हैं इंदौर की, उसमें से हमारे हर बस्ती में कम से कम 50-50 लोग भी हैं, कई-कई जगह पे। तो जो जिनको हमने प्रिपेयर करा है, सारी मीटिंग्स में आए हैं, उनको सारे लीगल तरीके पता है। अगर कल से सरकार से हम लड़े भी, मैं बताऊँ उनको ये, तो आजकल तो ट्रेंड बन गया है, डाल देते हैं जेल में कुछ दिनों के लिए। तो अगर हम चले भी गए तो वो है हमारे पीछे लड़ने के लिए, और हमारे बैकबोन तो है ही दादा और गौतम बताने के लिए। ठीक। कोई नहीं डाल रहा जेल में, कोई नहीं। हाँ। ओके। और अमन इस पे आप कैपेसिटीज़ का खोरी को करके, ख़ास करके क्योंकि खोरी का काफ़ी लोग अलग-अलग जगह पे भी चले गए हैं अब। तो ये जो टीम साथी का काम है, इस पे आप अगर थोड़ा कैपेसिटीज़ पे रिफ्लेक्ट कर पाएँ? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारी एक टीम है जिसको हम युवा साथी कहते हैं। सो उसमें जैसे कि मैंने आईएचएस के ट्रेनिंग में सीखा, जैसे आरटीआई, पीजीएमएस, मैपिंग, जीआईएस मैपिंग एक्सेट्रा। उस चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया, मैंने अपने और साथियों को वो चीज़ें सिखाई, और अभी वो अपने और जो उनके साथ के लोग हैं उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। सो इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आईएचएस कर रहा है, अभी हम जैसे लोगों के साथ में हमें सिखाना, हमें ट्रेनिंग देना चीज़ों के बारे में, तो मैं और सब लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी बस्तियों में और जगहों पे अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। और अगर आपके लिए इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को ट्रेनिंग दे पाएँ या अपनी चीज़ें सिखा पाएँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ, तो जो लोग इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनके साथ जुड़ के अपना जो एक्सपीरियंस है, वो हम जैसे लोगों को दें, ताकि हम भी कुछ कर पाएँ। हम चाहते हैं करना कि जो हम जैसे लोग हैं, जैसे अगर मैं अपनी बताऊँ, घर टूटने से पहले तक मुझे कुछ नहीं पता था, इन सब चीज़ों के बारे में कि ऐसी चीज़ें होती भी हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब चीज़ें नहीं दिखाता।
और अगर वो कुछ दिखा भी रहे हैं तो वो या तो इंक्रोचमेंट बोल के हटा दे रहे हैं। आजकल सीधा पीला पंजा बोल देते हैं, फिर उसको ऐसे जस्टिफाई कर दिया है कि ये पीला पंजा चल रहा है मतलब सामने वाले ने कुछ गलत किया है, वो या तो क्रिमिनल है या कुछ तो गलत किया है। तो मुझे भी नहीं पता था पर घर टूटने के बाद मुझे पता चला कि कितनी गलत चीज़ें होती हैं इस देश में। कोर्ट के बारे में हम सोचते हैं कि कोर्ट में न्याय मिलता है, हो सकता है मिलता हो, बट मुझे जितना मैंने देखा तो मुझे लगता है कि शायद ही 10% मिलता होगा, उससे ज़्यादा तो अन्याय ही चलता है। तो जब ये सब चीज़ें देखी मेरी भी आँखें खुली, तो मैंने उसके बाद से ये कोशिश रखी कि जो चीज़ मेरे साथ हुई, वो और किसी के साथ ना हो पाए। मैं जो मैं और मेरी टीम है हम अपने एरिया में तो काम करते ही हैं, बट आईएचएस से जुड़ने के बाद और सारी संस्थाओं से जुड़ने के बाद हमने दिल्ली के और जो बस्ती वगैरह है वहाँ पे जाके कोशिश की कि जो चीज़ हमारे साथ हुई वो उनके साथ ना हो। हमने अपना घर खोया पर उन्हें वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ना पड़े कि उन्हें अपना घर खोना पड़े। वो पहले ही अपना डॉक्यूमेंटेशन इतना मजबूत कर लें कि कोई उन्हें वहाँ से हटा ना पाए। सो थैंक यू, मेरे को इतना ही बोलना था। In the interest of time, I think we will close. There is a question online on, is there an attempt to collect data in terms of density, some critical geographies of gender ratio, age groups? We just want to say that that's not been done at this stage because these bastis are huge, and where it would be great to be able to do this. Currently, that's not been done. So that was a question online. We are extremely we feel extreme pride when we see how the innovations in actually understanding the methods of doing some of this very critical work become clear and sharp in the minds of activists. They already know how to do it. They are great leaders. It's just that little technical skill that sometimes held back, and then you can see the kinds of knowledge productions that come out and maps that governments have not been able to make, are being made. What the mainstream media is failing to do, activists are doing. So it's just really, thank you so much. Thank you, Adya.